डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, हमारा बहुत 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 सौभाग्य है जो आज आप हमारे साथ हैं। आप फिलहाल जीबी पंत हॉस्पिटल एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ कार्डियक साइंस है। He is also cardiologist in Parliament Health Annex. He is also Secretary of Delhi Branch of Cardiology Society of India and Chairman of Delhi Intervention Council. And he did his post-graduation and with a super specialization from Maulana Azad Medical College and associated Lok Nayak Hospital and GB Pant Hospital. Dr. Gupta has has been honored with the Excellence in Cardiology Award in 2018 by Honorable Minister of Health and Family Welfare. He has been also awarded as a Bhushan Swarup Young Scientist for the year 2018 by Honorable Vice President of India. Dr. Gupta has been practicing Raj Yoga and has been the student of Brahma Kumaris for last 35 years, where he has delivered more than 1,200 lectures, and he is a regular speaker in the prominent function for the International Yoga Day, which is celebrated widely in India and all over the world. Plus, he has been a panelist on various TV programs with the various TV channels like Jagran, Astha, Sony Entertainment, All India Radio, talk shows, so and many more things. So welcome Dr. Gupta ji. और ये प्रोग्राम हिंदी में रहेगा. We do have English translation available. So whoever would like to, please click on interpretation and choose your language preferred. Thank you so much. Dr. Gupta ji, हम सभी आपका एक रूहानी और वेव से स्वागत करते हैं. Thank you for being with us on this wonderful evening. Thank you so much. And now the stage is yours. Thank you. Good morning from India and good evening to the US and the Canada, and a very warm welcome and great thanks to all of you for joining in this beautiful interactive program. ये भी परमात्मा की beauty है. This is the power of God's love that we all are connected on virtually, but from our own heart. आपने बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हमेशा मेरे जीवन में एक बात मानना है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम परफ्यूम और इत्र लगा कर जाते हैं. तो कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन परमात्मा हमारे चरित्र को, गॉड हमारे कैरेक्टर को इतना सुंदर बनाता है कि हमारे कैरेक्टर से ही, हमारे जज्बे से ही बहुत सुंदर खुशबू आती है, वर्च्यूज की खुशबू आती है. एंड दैट इज व्हाट एवर aim is. I have tried to knit down the beautiful experience of 36 years in this small presentation. और मुझे याद है कि when I first went to Brahma Kumaris, I was only 2 years old, and that was way back in 1975, 1976. And till this particular date, I have never done any particular course. मैंने कोई भी ऐसी चीज, कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है. But what attracted me so beautifully was the power of love, the power of joy और power of happiness. और अगर हम कभी भी जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शक्तियां बहुत आवश्यक है. तो आज मैं आप सबसे आरंभ करने से पहले आज एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, और हमारे साथ चाहे आप ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड हैं and whether you are not, but let us all reflect on our own life and answer this one question. And either you can unmute yourself, or the better thing is you type on chat that what is your answer. और अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई उत्तर नहीं है तो type your fourth choice also. And this is simple question is that why do we all work in our life? हम अपनी जिंदगी में क्यों कार्य करते हैं? हम अपनी जिंदगी में क्यों कुछ भी कार्य करते हैं? The first one is we work in our life for money.
first choice. The second is we work in our life for happiness. And the third one is we work in our life both for money and happiness. पैसे और खुशी दोनों के लिए कार्य करते हैं. Reflect on your own answer and then please reply on chat. Take a moment, take a pause and answer. पैसे के लिए, मनी के लिए या पैसे और मनी दोनों के लिए? Only two people. Come on, answer. This is very beautiful. And we will examine each of the choices and you will see that how the magic आपके जिंदगी का ही कितना सुंदर वो unfold होता है. Okay, both happiness and money. Most of you are answering. Some are happiness, 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 both happiness. Okay, variable answers. So, भाईजी, your voice is breaking. आपका voice क्यों break हो रहा है? Are you able to hear me? But it is okay. Fine. Is it? Yeah. Is it fine now? Is Yeah. it fine now? Okay. Yeah. Okay. देखिए, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हम अपनी जिंदगी में क्यों कार्य करते हैं. I will give you 3 answers. और अगर आप समझते हैं कि none of the answers is correct, you can even type your 4th answer. अब अपने आप से हम लोग पूछें that क्या हमको जिंदगी में खुशी के लिए काम करना चाहिए या हमको जिंदगी में खुशी से काम करना चाहिए? Ask yourself. Should we work in our life for happiness or should we work in our life with happiness? We should work in our life with happiness. And that is the biggest problem of our human race, our mankind. Today, each one of us, आज हम सब लोग क्या करते हैं? हम लोग खुशी को chase कर रहे हैं. Even when we are being spiritual, we are turning spiritual. You know, whenever we choose, जब भी हम अपने जीवन में खुशी के पीछे भागेंगे, तो खुशी हमारे जीवन में हमको छोड़ते हुए आगे भागती जाएगी. लेकिन जब हम अपने हर कार्य में, अपने जीवन के हर पहलू में हम उस खुशी को क्रिएट करेंगे, हम उस खुशी को अनुभव करेंगे, it is then that our life starts to transform. और आज यही spirituality हमको सिखाती है. That people are not going to change. Situations are not going to be the way you want. जैसे लोग हैं, परिस्थितियां हैं, relations हैं, they may be different. लेकिन हमारी खुशी, हमारी life can be according to our own self. And आज हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है that we have actually stopped creating happiness and joy in our own life. So let us examine each one of those. इसका आज कारण क्या है? This is simple is because every thought that we are creating, हमारे मन का एक एक संकल्प is creating our reality. आपका एक एक संकल्प एक दिन में जो आप क्रिएट करते हैं वो आपकी डेस्टिनी, आपके अपने प्रकृति, आपके अपने कैरेक्टर को डिटरमिन करता है. और वो संकल्प हमारी अपनी रचना होती है, वो संकल्प हमारी अपनी चॉइस होती है. लेकिन जब उस संकल्प को हम स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाते, दे गो इराटिक, तो आप देखेंगे वही माइंड जो हमारा ब्यूटीफुल सर्वेंट हो सकता है, जब हमारा कंट्रोल उसके ऊपर खो जाता है तो वो हमारा मास्टर बन जाता है. एंड इट रियली इज डेंजरस. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे. आज संपूर्ण विश्व के अंदर अगर आप देखेंगे तो आज क्या है? टुडे पीपल हैव क्रिएटेड मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, पीपल हैव ग्रेट होम्स, पीपल हैव एवरीथिंग. लेकिन इट टुक ओनली 2 months फॉर नेचर, 2 months फॉर नेचर टू ब्रिंग एवरीथिंग डाउन टू इट्स फुट. कोविड की डिजीज आई, लोगों का धन, लोगों की दौलत, एवरीथिंग वाज लॉक्ड अप, पैक्ड इनसाइड. लेकिन क्या उनको जीवन में महसूस हुआ कि केवल मेटेरियलिस्टिक ट्रेजर्स इज नॉट द ट्रुथ ऑफ आवर लाइफ? हमारे पास सब कुछ था, लेकिन आज लोग अपने घर के अंदर बंद हो गए. क्यों? क्योंकि संपूर्ण मन के अंदर केवल 4 इमोशंस में आज मैनकाइंड जी रही थी. वो है फियर, एंगर, इरिटेशन, पैनिक एंड अनसर्टेनिटी. और क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बहुत
वीक था, हमारा माइंड बहुत uncontrolled था, and that is why this is called living life in an emergency mode. तो सब कुछ होते हुए भी, despite having and experiencing everything in our life, most of the human mankind is not able to create that happiness, not able to experience that joy, love, and satisfaction in life. And what is the reason? The reason is not outside. The control is not outside. The control is completely with our own inner self. So, आज we will experience that despite having everything in our life, am I happy today? मुझसे कई बारी लोग पूछते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी को 35 years से फॉलो करते हैं. I always tell them, it is not just important कि मैं ब्रह्मा कुमारी को कितने साल से अटैच्ड हूं, but what is more important is कि how beautifully I have allowed जो principles हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको अपने जीवन में अपने कितना स्वरूप बनाया है, उनको हम अपने जीवन में कितना अपनाया है. आज हम सब कुछ जानते हैं, वी नो एवरीथिंग, बट क्या हम उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस कर पाते हैं? इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म आवर ओन लाइफ बाय चेंजिंग आवर ओन इनर प्रोसेसर? परमात्मा क्या करते हैं? ही कम्स एंड ही डजंट आस्क यू टू चेंज एवरीथिंग, एनीथिंग आउटसाइड. ही डजंट से कि आप इस घर को चेंज करो, इस कपड़े को चेंज करो, इस मकान को चेंज करो. नथिंग. व्हाट ही टेल्स इज कि अपने थॉट्स को, अपने प्रोसेसिंग सिस्टम को जब हम चेंज करते हैं, आवर होल डेस्टिनी, आवर होल आउटपुट completely transforms and we start living our life with joy and happiness and innocence. I remember my childhood days when we used to be very innocent, when we used to be innately pure, when we used to be creative. Love and harmony determined our life. This was the joy. हमारी जीवन की ये खुशी. This is what we had bargained our life for. We had not bargained our life for the materialistic treasures. So let us experience कि आज हमारे जीवन में कहां हमको परिवर्तन लाना है. When we want to change the whole world, the first process is that we have to create transformation inside. हमको परिवर्तन स्वयं के अंदर लाना पड़ेगा और ये परिवर्तन स्वयं के अंदर लाकर हम संपूर्ण विश्व को चेंज कर सकते हैं. We can create magic not only in our lives, but we can create magic in different world, in every human being. I remember when I was going and studying in my medical school, तो मैं मेडिकल स्कूल में अपने प्रोफेसर से पूछता था कि सर मैं इस बॉडी को डिसेक्ट करता हूं. मैं एनाटॉमी के प्रोफेसर से पूछता था, बट दिस बॉडी इज नॉट वर्किंग. इसका हाथ है, ये हिल नहीं रहा. इसकी आंखें, ये देख नहीं रहा. इसका दिल है, ये धड़क नहीं रहा. व्हाट इज नॉट देयर इन दिस बॉडी जो इसको जीवित बॉडी से एक डेड बॉडी बना देता है. एंड ही यूज्ड टू से कि इसके अंदर प्राण नहीं है, इसके अंदर वायु नहीं. एंड दैट इज वेयर माय क्वेस्ट फॉर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी स्टार्टेड. मैं सोचता था कि क्या मैं अपने मन को केवल परिवर्तित करके कैन आई क्रिएट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड? क्या मैं अपने थॉट्स को, क्या साइंस हमको इतनी शक्ति देती है? बाबा ने हमको, परमात्मा ने हमको इतना सुंदर रूप से बताया है, लेकिन कैन द पावर ऑफ माय माइंड ट्रांसफॉर्म द होल वर्ल्ड? क्या हमारे पास इसकी साइंटिफिक एविडेंस है? क्या मैं इसको अपने जीवन में यूज कर सकता हूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? If it can happen, तब ये real magic होगा. Then it will be like creating a beautiful destiny. And there, what it started was creating a beautiful balance. Not just working, but living your life by creating your own choices. Not just doing in your life, but being in your life. Transforming human doings to human beings. जब हम अपने मन की संरचना को चेंज करते हैं, जब हम अपने मन के विचारों को चेंज करते हैं, मन के विचारों को चेंज करते ही हमारी अनुभूतियां चेंज होती हैं. Our experiences change, our destinies, they start changing
in our life. And it's all about creating a balance. Not only just working, केवल कार्य नहीं करना है, कार्य तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन उस कार्य को करते हुए भी हमको अपने राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करना है. लेफ्ट ब्रेन इज अ एनालिटिकल ब्रेन, बट मेडिटेशन हमको सिखाता है दैट बैलेंस योर लेफ्ट ब्रेन विद योर लविंग एंड कंपैशनेट ब्रेन. वर्क इन लाइफ बैलेंस, जॉय एंड हैप्पीनेस के साथ साथ हमको वर्क, जब ये बैलेंस हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, इट इज देन दैट वी स्टार्ट डिफाइनिंग अवर डेस्टिनी. हम अपने मन के संकल्पों के द्वारा हम अपने भविष्य को निर्माण करते हैं. तो आइए आज हम बहुत सुंदर और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझेंगे. आपको इस प्रेजेंटेशन को समझने के लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं, लेकिन कल आपको कोई भी पूछेगा कि क्या हम संकल्पों के द्वारा अपने शरीर में कहीं पर भी इफेक्ट ला सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि मैं विचार को चेंज करूं तो मैं अपने शरीर को चेंज करूं? क्या मैं अपने विचारों के द्वारा अपने विश को चेंज कर सकता हूं? क्या मैं विचारों के द्वारा अपने वाटर और फूड को चेंज कर सकता हूं? क्या मैं अपने विचारों के द्वारा अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है? जब आप मेडिटेशन करते हैं, क्या मेडिटेशन इतनी शक्ति देता है कि यू कैन कंप्लीटली चेंज, आप सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं. आज हम उसको साइंटिफिक रूप से और लॉजिकल रूप से हम लोग समझेंगे. आज एक ह्यूमन माइंड, आज आपका मन जो है एक दिन में 50,000 से 60,000 विचार उत्पन्न करता है. आप सबका माइंड, ये नेशनल साइंस फाउंडेशन का क्लियर एनालिसिस है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 50,000 विचारों में से 95% जो हमारे विचार हैं वो नेगेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं एंड पर्पसलेस होते हैं. आप देखिए अपने विचारों को, क्या कर रहे हैं? बस लगातार विचार चलते चले जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ देम रिपीटेटिव हैं, सेम विचार बार बार आएगा, नेगेटिव हैं, पर्पसलेस हैं या वेस्ट थॉट्स हैं. साइंस कहती है केवल 5% हमारे एक्चुअल विचार पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल थॉट्स होते हैं. तो आप देखो कि अगर एक फैक्ट्री है जिसमें 50,000 प्रोडक्ट्स निकलते हैं और उन 50,000 प्रोडक्ट्स में से 48,000 प्रोडक्ट्स नेगेटिव एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, what would we call that factory as? A positive factory or a useless factory? Naturally, it is a useless factory. अगर हमारे 95% थॉट्स नेगेटिव हैं तो नेचुरली हमारी लाइफ किस प्रकार की होगी, हमारी डेस्टिनी किस प्रकार की क्रिएट होगी. आपका एक एक विचार आपकी डेस्टिनी को क्रिएट करता है. हमारा विचार हमारे जीवन में हमको चॉइसेस देता है. अगर एक नेगेटिव विचार है तो हम नेगेटिव चॉइस जनरेट करते हैं. नेगेटिव चॉइस नेगेटिव बिहेवियर जनरेट करेगा. नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव इमोशन को क्रिएट करेगा और नेगेटिव इमोशन हमारे जीवन में हमारा नेगेटिव आउटपुट देगा. जब मन परेशान है तो शरीर ठीक होते हुए भी हमको अस्वस्थ महसूस होता है. वी डोंट फील गुड and happy in our life. Why? Because the control center is here. लेकिन when we are ill from our body, जब मेरे शरीर में कोई बीमारी है लेकिन मन का संकल्प बहुत खुश है, I'm really happy, आपको बहुत अंदर से आनंद की अनुभूति होती है. What happens? You start experiencing joy. आप शरीर का दर्द भूल जाते हैं और आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं. You start celebrating in your. That is why आज हम अगर अपने संकल्पों को चेंज करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन को हम प्रोग्राम करते हैं पॉजिटिव संकल्पों से, सकारात्मक संकल्पों से, खुशी के संकल्पों से, देन वी स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग आवर बिहेवियर. हम अपने व्यवहार को बदलते हैं. संकल्पों के द्वारा व्यवहार का परिवर्तन, व्यवहार के द्वारा वृत्ति और सृष्टि का परिवर्तन आरंभ. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे संकल्प, आज साइंस हमको बता चुकी है, हमारे ब्रेन में केवल नहीं रहते. ये एक बहुत सुंदर मशीन है, इसको मैग्नेटो एनकेफेलोग्राम कहते हैं.
हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति जब इस मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम की मशीन में जाकर बैठता है तो ये हमारे ब्रेन के संकल्पों को मैप कर लेता है और ये बताता है कि आपके संकल्प पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये साइंस आज क्लियरली हमको बताती है कि आपके संकल्प आपके ब्रेन में ही नहीं, आपके आउटसाइड एनवायरमेंट में भी रेडिएट करते हैं। दिस इज द पावरफुल साइंटिफिक एविडेंस। और अगर हमारे संकल्प बाहर रेडिएट करते हैं, इफ आवर थॉट्स आर रेडिएटिंग आउटसाइड, तो हमारा एक एक विचार हमारा भविष्य निर्मित करता है। स्पिरिचुअलिटी हमको क्या बताती है? क्रिएट एंड थिंक पॉजिटिव। अपने विचारों को पावरफुल एंड पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि आपका एक एक विचार पावरफुल तरीके से आपके शरीर, आपके प्रोफेशन, आपकी डेस्टिनी, आपके रिलेशंस पर एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और ये विचार कहां कहां पर एक्ट करते हैं? ये विचार एक्ट करते हैं हमारे 3 डिफरेंट लेवल्स। अपने आप से पूछें, क्या आप समझते हैं कि हमारे विचार हमारे फ्यूचर पर इफेक्ट करते हैं? आप अपने आप से पूछें, क्या हम समझते हैं कि अगर हमारे विचार हमारे भविष्य को क्रिएट करते हैं तो रोज सवेरे उठकर हम अपने विचारों को शक्तिशाली, अपने विचारों को पावरफुल बनाते हैं? अगर हम बनाते हैं, देन वी हैव द पावर टू क्रिएट आवर ओन चॉइसेस। आज हमारे विचार जो हैं, हमारी डेस्टिनी को हमारे सबसे पहले हमारे मन, हमारी बॉडी और हमारे जीन्स पर इफेक्ट करते हैं। हमारे विचार हमारे संबंधों पर भी पावरफुल इफेक्ट डालते हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशंस क्या है? हमारे परिवार में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या आपस में प्यार, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के लिए एप्रिसिएशन है, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस है? ये सब डिपेंड करता है हमारे विचारों। क्या हमारे विचार हमारे एनवायरमेंट पर भी इफेक्ट डालते हैं? यस, आवर थॉट्स हैव अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो पानी हम लोग पीते हैं, और जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या हमारे विचार उस पर असर डालते हैं? आज हम इसको साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रूप से एनालाइज करें। और आप सोचिए कि अगर हम इस बात को अपने जीवन, अपने अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं, तो देन दिस इज मैजिक। चेंज योर थॉट्स। एक सेंट्रल प्रोग्रामिंग हमारे मन से हमारे शरीर, हमारे बाहर जाएगी, एंड योर कंप्लीट डेस्टिनी विल बी ट्रांसफॉर्म। आपका जीवन आपके विचारों का कॉन्सिक्वेंस है। और यही चीज हमने ब्रह्मा कुमारी के साथ बचपन से होकर एसोसिएट की। जब हम स्पिरिचुअल वर्जन्स को पढ़ते थे, रोज हमको बताया जाता था, रोज आज की मेडिटेशन आज हम मुरली को भी सुनेंगे तो परमात्मा कितना सुंदर रूप से हमको बताते हैं कि अपने कैरेक्टर्स को हमें सुधारना है, अपने विचारों को अपने आत्मिक रूप में स्थित होते हुए जब हम मन, बुद्धि और संस्कारों के बीच में सिंक्रोनिसिटी को क्रिएट करते हैं, मन श्रेष्ठ विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि पॉजिटिव निर्णय लेती है, तो मन और बुद्धि इकट्ठे कार्य जब करते हैं तो हमारे संस्कार, हमारे हैबिट बहुत सुंदर और पावरफुल बन जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि क्या हमारे विचार हमारे जीन्स पर इफेक्ट डाल सकते हैं? क्या जो हमारे मम्मी एंड डैडी से, हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि भाई इसका जेनेटिक मेकअप भी इसको इस प्रकार से मिलता है, तो क्या हमको जो जेनेटिक मेकअप अपने माता पिता से मिलता है, क्या वही हमारी डेस्टिनी है? या मेडिटेशन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, उनको चेंज करने के द्वारा हम अपनी बीमारियों को भी हील कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? किसी व्यक्ति को कोई इलनेस है, किसी व्यक्ति के फैमिली में कोई हार्ट अटैक की बीमारी है, क्या ऐसी बीमारी है, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं? आज हम इसको एग्जामिन करें। आप देखें कि आज एक मॉलिक्यूलर स्विच की तरह अगर हम अपने विचारों को चेंज करें, तो बेडरूम में स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का स्विच होता है, तो विचारों को चेंज करने के द्वारा अगर हम अपनी नेगेटिव जीन्स को
यानी वो जीन्स जो हमारे जीवन में बीमारियां करती हैं, अगर हम उनको स्विच ऑफ कर सकते हैं तो ये मैजिक हो जाए। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग योगी आत्माओं में देखते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमार में भी आपने दादी जानकी को देखा, हाउ ब्यूटिफुली शी वॉज एबल टू कॉन्कर ओवर हर इलनेस बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन। जीन्स आज मेडिकल साइंस हमको ये बताती है कि आज साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स, यानी एक जीन हमको एक एक्सप्रेशन देगी, लेकिन अपने संकल्पों के द्वारा क्या वो जीन एक्सप्रेस करेगी या वो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगी, वो चॉइस आज हमारे पास है। अर्थात अगर आप देखें कि आपके अंदर एक प्रोग्राम्ड जीन आपको मिली है, वो आपकी जीन खुशी भी दे सकती है और एंगर भी आपको दे सकती है, आपका नेचर डिटरमिन कर सकती है। लेकिन हम अपने संकल्पों के द्वारा उस जीन को एक्सप्रेस कराते हैं कि मुझे अपने जीवन में हर परिस्थिति में खुश रहना है। और कोई व्यक्ति कहता है मुझे हर बात में एंगर क्रिएट करना है। अगर ये कंट्रोल मेरे पास है, then this will create magic in our life, and this is called the science of epigenetics. मैं आपको बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूं। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर डीन ऑर्निश। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को लिया। ध्यान से सुनिए, ये हर बीमारी के लिए न्यूट्रल है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में चलते हैं, कुछ कुछ बीमारियां आती हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को दिया और एक ग्रुप को उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस दी, और दूसरे ग्रुप को उन्होंने ट्रीटमेंट के साथ साथ मेडिटेशन और लाइफस्टाइल भी सिखाया। केवल 6 हफ्ते की मेडिटेशन और लाइफस्टाइल के बाद उन्होंने देखा कि जो कैंसर कॉजिंग जीन थी प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स में, वो सिग्निफिकेंटली कम एक्सप्रेस होती गई। जो लोग केवल ट्रीटमेंट ले रहे थे उसके अंदर इसका फर्क नहीं आया, लेकिन जो लोग मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंज कर रहे थे, उनके अंदर जो कैंसर कॉजिंग जीन थी वो सिग्निफिकेंटली कम हो गई, और जो हेल्दी जीन्स थी, जो प्रोटीन कॉजिंग जीन्स, बिल्डिंग जीन्स थी, उसका एक्सप्रेशन बढ़ता गया। और जब उन्होंने देखा कि लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा जितनी भी कैंसर कॉजिंग जीन्स थी हमारी बॉडी की, मेडिटेशन के द्वारा उनका एक्सप्रेशन कम हो गया। व्हाट डज इट शो? ये हमको क्या शो करता है? ये हमको शो करता है कि हम अपने संकल्पों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम अपने बॉडी के जेनेटिक स्ट्रक्चर के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। अब आप अपने जीवन को कभी कभी देखें, मैं बीमार हूं, मेरा शरीर नहीं चलता है, मुझे डायबिटीज है, मुझे हाइपरटेंशन है, मुझे हार्ट अटैक की बीमारी हुई है, मेरे को जोड़ों में दर्द है, मेरे को ये परेशानी है, मेरे को इस प्रकार से दर्द रहता है। ये फीलिंग के अंदर रहना, अर्थात मैं अपने आप को बार बार सिग्नल दे रहा हूं कि मैं बीमार। हमारे संकल्प, हमारी मेडिटेटिव पावर हमको कहती है कि हम अपने बॉडी के जीन्स को कंट्रोल करते हैं कि आई एम हेल्दी। स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इन अ पॉजिटिव वे, और जब आप ये करेंगे, आपका कंप्लीट इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी जो है वो आपको हील करने लग जाएगी। मैं आप इसके बारे में अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। इसी प्रकार हमने अपने हॉस्पिटल में मेडिटेशन के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। आपको बहुत मजा आएगा सुनकर। मैं हार्ट के करीब 100 पेशेंट्स एक हफ्ते के अंदर ऑपरेट करता हूं, ऑलमोस्ट रोज करीब 25 से 30 पेशेंट। और उन हार्ट अटैक के पेशेंट्स में मैंने देखा कि जो नए हार्ट अटैक के पेशेंट्स आ रहे थे, उनकी उम्र 100 पेशेंट्स में से 33 पेशेंट्स यानी 35% पेशेंट्स जो थे, वो केवल 18 से 30 साल के बच्चे हार्ट अटैक के साथ पूरी दुनिया में आते थे। ओनली 18 to 30 ईयर्स। और जब हमने उनको स्टडी करना आरंभ किया तो उनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था। उनको ना डायबिटीज थी, ना हाइपरटेंशन था, ना कोई और बीमारी थी, लेकिन फिर भी यंग एज में उनको हार्ट अटैक हो रहा था।
अब हार्ट अटैक हो रहा है तो उसका कोई कारण होना चाहिए, तो हमने उनके जीन्स को स्टडी करना आरंभ किया। आप देखिए, जिस तरह हमारे शरीर के अंदर, जूते के अंदर आप देखते हैं ना, शू लेसेस के ऊपर एक कैप लगी होती है, देखिए राइट टॉप पर देखिए कि शू लेसेस के ऊपर एक कैप लगी होती है। उसी प्रकार हमारी जीन्स के ऊपर भी एक कैप होती है जिसको हम लोग टेलोमियर कहते हैं। जितनी पावरफुल ये कैप होती है उतना ये जीन्स को कंट्रोल करती है और जीन के एक्सप्रेशन को रोकती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एजेड होते जाते हैं तो ये टेलोमियर डिस्ट्रॉय होता जाता है और तभी उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती जाती हैं। कहेंगे ना भाई उम्र हो गई है तो हाइपरटेंशन भी आ जाएगी, डायबिटीज भी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि वो कैप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जीन एक्सप्रेस करने लग जाती है। तो हमने क्या किया, हमने इन बच्चों को, इन यंग बच्चों को हमने इनके टेलोमियर लेंथ को मेजर किया और कितना तनाव ये अपने जीवन में अनुभव करते हैं उस स्ट्रेस को भी हमने मेजर किया। आप जानकर हैरान हो कि जब हमने इनकी जेनेटिक स्टडी की तो इनकी शारीरिक एज थी 18 से 30 साल। लेकिन जब हमने इनकी बायोलॉजिकल एज यानी जेनेटिक एज को स्टडी किया तो इनकी जेनेटिक एज जो थी वो 60 से 80 साल के बराबर थी। 60 to 80 ईयर्स, यानी शारीरिक रूप से वो केवल 18 से 30 साल के बच्चे हैं। लेकिन जब हमने उनकी जीन्स को स्टडी किया तो उनकी जेनेटिक एज थी 60 to 80 ईयर्स। वाई? कारण तो जानना चाहिए ना। आप कहेंगे भाई मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, कारण क्या है? कारण था जब हमने उनके इमोशनल स्ट्रेस को स्टडी किया तो हमने देखा दे वर हैविंग हाई लेवल ऑफ इमोशनल stress in their life, negative stress in their life, lack of love in their life, domestic violence in their life, lack of purpose in their life, lack of happiness in their life। सब कुछ है। अपने आप को भले आध्यात्मिक भी कहेंगे, शास्त्र भी पढ़ेंगे, लेकिन शास्त्रमयी जीवन नहीं बनाया है। ज्ञानी बने, हम भी क्या करते हैं, हम बाबा के बच्चे भी हैं, हम परमात्मा हमको ज्ञान भी पढ़ाता है, लेकिन उस ज्ञान का स्वरूप जब तक हम नहीं बनते हैं, तब तक हम एम्बॉडीमेंट नहीं बनते हैं, तब तक हम उस जॉय को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो देखिए कि लैक ऑफ लव इन आवर लाइफ, लैक ऑफ पॉजिटिव आउटलुक जो है वो हमारी जीन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करके टेलोमियर लेंथ को डिस्ट्रॉय करता है। अमेजिंग साइंस। यानी हमारे सोच, हमारे नेगेटिव विचार, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे घर का माहौल, हमारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं हमारे जीन्स को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं और हम लोग डिजीज्ड होते जाते हैं। तो क्या करना होगा? अगर हम अपने जीवन में हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे, अपने जीवन में पॉजिटिव आउटलुक क्रिएट करेंगे, सतयुग जब भी आएगा, लेकिन उस सतयुग की अनुभूति को, उस हेवन की अनुभूति को हमें इस मोमेंट पर क्रिएट करना पड़ेगा। We have to start experiencing that heaven in our own life. That is what we did in our own home, which I will share in future slides with you. ये यूएस की हार्वर्ड सेकेंड जनरेशन स्टडी, which I am going, this is called ग्रांट एंड ग्लोइक स्टडी। ये डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर हैं जिनको आप देख रहे हैं विद हिज वाइफ। इन्होंने यंग बच्चों को 1930 से लेकर 2014 तक फॉलो अप किया और इन्होंने कहा कि देयर इज ओनली वन सीक्रेट टू लॉन्ग एंड फुलफिलिंग लाइफ, ओनली वन सीक्रेट टू लॉन्ग एंड फुलफिलिंग लाइफ। इन्होंने जब उनको देखा कि जो लोग बहुत अच्छा जीते हैं, खुश जीते हैं, क्वालिटी लाइफ जीते हैं, उसका केवल एक सीक्रेट है और वो है हमारे अच्छे स्व से और परिवार में रिलेशंस। द लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय जो हम अपने परिवार में क्रिएट करते हैं। परमात्मा आकर क्या करता है? वो कभी ये नहीं कहता कि आप घर बार छोड़ दो। परमात्मा आकर हमारे संबंधों को सुंदर बनाता है, हमारे परिवार के संबंधों को पावरफुल एंड पॉजिटिव बनाता है। हमको क्या करना है? घर पर भी रहते हुए हमारे रिलेशंस अपने आप से, हमारे परिवार से बहुत सुंदर और पावरफुल, पॉजिटिव हो।
हमारे अपने फैमिली में वी आर 4 पीपल। मेरी लौकिक छोटी बहन है जो कि आईटी प्रोफेशनल है, एक बहुत बड़ी एजेंसी रन करती हैं विद 70 पीपल, और कहती हैं डायरेक्टर बाबा है, परमात्मा उसका डायरेक्टर। मेरे लौकिक फादर, ही इज अ गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट, लौकिक मदर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड ऑल 4 ऑफ अस लिव इन बाबाज होम। और हमने घर में क्या किया है, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स। मॉर्निंग 3:15 AM से लेके रात के 11 बजे तक एवरीबडी इज ऑक्यूपाइड इन अवर ओन लाइफ स्टाइल। 7:30-8 बजे ऑपरेटिंग थिएटर, एवरीबडी इज वर्किंग इन अवर लाइफ। लेकिन घर के एनवायरमेंट को नो नेगेटिव एनवायरमेंट। इस घर में जो बाबा का घर है, वहां पर देर आर ओनली 2 रूल्स। नो बडी कैन स्पीक नेगेटिव, नंबर 1, एंड दूसरा, नो बडी शुड टॉक इन लाउड वॉइस। जब हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे घर में, और जब हम ऊंची आवाज में घर में नहीं बोलेंगे, तो घर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा घर का एनवायरनमेंट? आप एक दिन प्रैक्टिस करके देखिए। डोंट एम फॉर चेंजिंग योर लाइफ, एम फॉर चेंजिंग योर ओनली वन डे। और हमको घर में यही फीलिंग होती है, वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हो गई हैं। जमुना के कंठे पर घर है, सत्युग आएगा ना तो वी आर ऑलवेज प्राउड। दादी गुलजार यहाँ पर कितनी बारी आई हैं, दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी, एवरीबॉडी। और हम लोग कहते हैं बाबा का घर जमुना के कंठे पर है। इट्स अ हाई एनर्जी जोन। आत्माएं आती हैं, उनको फीलिंग होता है कि यहाँ पर बहुत पावरफुल और पॉजिटिव शक्ति हमको खींचती है। व्हाई? बिकॉज अवर वाइब्रेशंस, अवर एनर्जी, हमारे संकल्प हमारा एनवायरमेंट को क्रिएट। तो हम भी अपने घर को कैसा बनाएंगे? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट लिसनिंग। आध्यात्मिकता केवल हम किसी स्पिरिचुअल वर्जन को सुने, उसको अपने जीवन में अनुभव करें, ये आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है कि हम उसके डेप्थ में जाकर उसका स्वरूप बने, उसको अपने जीवन में अनुभव करें, अनुभव की शक्ति, अनुभवी मूर्त बने। एंड दैट इज व्हाई आज साइंस ये क्लियरली शो कर चुकी है कि इफ वी वांट टू चेंज आवर डेस्टिनी, if we want to change our destiny, the power is with our own self. Harmony is not created by anybody else. Harmony has to be created by our own inner self. तो बुजुर्ग होते जाएंगे, ओल्ड होते जाएंगे, लेकिन अपनी जीन्स को रेगुलेट करना वो किसके पास है? वो हमारे पास है। तो आज से हम लोग क्या कहेंगे? आज से हम सब, एवरीबडी, आर यू देयर विद अ स्माइल और आर यू देयर कि हम लोग उदास बैठे हैं? बियर अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस, इट विल हील यू, क्रिएट दैट जॉय एंड हैप्पीनेस इन यू। पावरफुल संकल्प, परमात्मा, उसकी शक्ति है। The power of God is with us. Then who can do something negative for us? The most important gifts जो आज हम किसी को दे सकते हैं हमारे परिवार में, वो हमारा धन, हमारी दौलत नहीं है। The most beautiful gift that we can give to anybody in our life is our love, our time and our attention. तो अपनी जिंदगी की पेस को थोड़ा स्लो करें, सब कुछ होते हुए, लेकिन खुशी को अपने जीवन में हर पल क्रिएट करना है। Every moment of your life, you start creating joy and happiness in your life, and then you see the magic will unfold. We have used this tool very powerfully and beautifully. Take out time to sometime detox yourself. We have today become chained by technology. Morning till evening, we are working continuously. We are having laptop, mobile phone, we are having everything, but we are chained by technology. Even in a spiritual world, continuously, the sense of getting connected, कि मैं मोबाइल चेक करूं, मैं व्हाट्सएप चेक करूं, मैं फेसबुक चेक करूं, मैं ट्विटर चेक करूं, let it go off. Take out time to just be with your own self. 1 hour in the night before you sleep, रात को सोने से पहले 1 घंटा completely create a e-free zone in your home. In our home, Baba's home, whenever we are having our meal, it's been 50 years in our life
never ever we have missed a dinner together until and unless we are traveling. It's a rule. Mobile is switched off. There is no television which is ever running. The vibrations are powerful. चारों लोग घर के अंदर, everybody is a very good cook. परमात्मा ने सबको बहुत अच्छा कुक बनाया है और सब बैठकर साथ भोजन करते हैं. We interact with each other. We start creating joy and happiness with each other. That's the beauty. That's the living. That's life. Living a सत्युगी लाइफ. एक दिन ट्राई करके देखिए. घर में बैठकर, अपने घर में बैठकर हाई एनर्जी जोन बनाकर स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन लाइफ. सो द फर्स्ट थिंग इज, द ओल्डर पैराडाइम वाज कि हमको जेनेटिक मेकअप फिक्स्ड मिला है, लेकिन आज साइंस हमको क्लियरली बताती है कि योर जीन्स, आपका डीएनए आपकी डेस्टिनी नहीं है. आपके पास शक्ति है कि आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं. आपके पास शक्ति है कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं. तैयार हैं? बताइए, हाथ उठाकर बताइए. तैयार हैं? तैयार हैं? आज के बाद एक एक बच्चा ऐसा नहीं बैठना कि मैं थका हुआ हूं, पॉसिबल नहीं है, दिस इज हैपनिंग नेगेटिव. नो 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 नो, नथिंग. आज के बाद हम सबको केवल एक संकल्प लेना है. आई एम पॉजिटिव एंड पावरफुल. आई एम हील्ड. मैं बीमार नहीं हूं. डोंट एक्सेप्ट इलनेस. उसको रजिस्टर ही नहीं होने देना है. उसको कहना है आई एम फाइन एंड परफेक्ट. एक सेंट्रल संकल्प इधर से जाएगा ना, बॉडी लाइक अ कंट्रोल सेंटर, बॉडी आपके कंप्लीट लेवल पर स्वयं कार्य करने लगती है. कई बार आप लोग पूछते हैं कि ठीक है, क्या मेरे विचार मेरे शरीर पर भी इफेक्ट डालते हैं? जो मैं सोच रहा हूं, क्या मैं अपने विचारों को चेंज करूंगा तो विचारों को चेंज करने से क्या मेरा शरीर, मेरा माइंड भी चेंज हो जाएगा? क्या हम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा? क्या ये पॉसिबल है? तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं. और अब मेरी तरफ आप ध्यान से देखिएगा. इस स्लाइड में मत जाइए, बहुत ध्यान से समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं. आपके हार्वर्ड के अंदर न्यूरो साइंटिस्ट हैं, विच इज ऑल्बर्ट पास्कल लियोन. इन्होंने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स को लिया. एक ग्रुप में इन्होंने बच्चों को लिया और उन बच्चों को लेकर पियानो एग्जैक्टली प्ले करना सिखाया. यानी एक ग्रुप था जिनको पियानो पर बैठाया और पियानो प्ले कर. दूसरे ग्रुप को उन्होंने एक कमरे में रखा. उनको पियानो नहीं दिखाया, लेकिन केवल उनको मेंटली रिहर्स कराया, वीडियोस दिखाए कि पियानो को इस प्रकार से बजाया जाता है. तो एक ग्रुप एक्चुअली बजा रहा था और दूसरा ग्रुप केवल इमेजिन कर रहा था कि वो पियानो को बजा रहा है. समझ गए आप लोग मेरी बात को? क्लियर हुआ ना? वन वॉज एक्चुअली प्लेइंग पियानो एंड द अदर वन वॉज केवल इमेजिनिंग. जैसे आप एक बारी किचन में एक्चुअली काम कर रहे हैं और दूसरा यहीं पर टेबल पर बैठे बैठे आप क्रिएट कर रहे हैं कि मैं किचन में वो सब्जी बना रही. तो उसके बाद इन्होंने 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद इन्होंने उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेक किया कि ब्रेन में क्या चेंजेस आए. आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग एक्चुअली पियानो बजा रहे थे और जो लोग केवल सोच रहे थे कि वो पियानो बजा रहे हैं, दोनों ग्रुप्स के अंदर ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर रूप से चेंज हो गया. अमेजिंग. यानी कार्य करने से ज्यादा केवल सोचने की शक्ति के द्वारा ही उन्होंने अपने ब्रेन के पैटर्न को चेंज कर लिया. कैन यू बिलीव दिस? आपका सोचना ही आपके शरीर की प्रोग्रामिंग को कर देता है. आप अपने ब्रेन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं जब आप बार बार उसे बोलेंगे, आई एम फाइन, आई एम हील्ड, आई हैव नो प्रॉब्लम. दिस इज द पावर दैट वी हैव. दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. तो आज साइंस क्लियरली बता चुका है कि अगर हेल्दी ब्रेन है, तभी मेडिटेशन में हम लोग प्रैक्टिसेस बताते हैं ना अपने आप को, हम सम्मान देते हैं मेडिटेशन में. आई एम अ
पावरफुल सोल, मैं सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो स्वमान का अभ्यास है, वो स्वमान का अभ्यास क्या करता है? वो आपके ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देता है। अब वो स्वमान का अभ्यास बार बार करने से हमारा कंप्लीट ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और 21 दिन के लिए क्यों बताते हैं? क्योंकि 21 डेज में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेन की न्यू जो पाथवेज हैं वो एक्चुअली डिजाइन हो जाती है। सो शक्ति किसके पास है? हमारे संकल्पों के द्वारा हम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। जब नए थॉट्स लाएंगे, देखो नेगेटिव थॉट्स, सेम संकल्प हार्ड वायर होता जाएगा। लेकिन जब हम अपने पुराने थॉट्स को चेंज करेंगे, आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम, तो हमारा वो पुराना जो पाथवे है वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा और नया हेल्दी पॉजिटिव पाथवे वो एक्टिवेट होता जाएगा और वो हमारे ब्रेन को हेल्दी और पावरफुल बना देगा, नए संस्कार देगा, नई हैबिट्स देगा। और वही परमात्मा रोज जब हम स्पिरिचुअल वर्जन्स पढ़ते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर हार्ड वायरिंग अवर ब्रेन। बार बार वो बात बताई जाती है कि पुण्य आत्मा हूं मैं, अच्छे कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म मेरी डेस्टिनी को करेंगे, पावरफुल संकल्प लाने हैं। वो बार बार थॉट्स जब होते हैं तो मेरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है और वो प्रोग्रामिंग पॉजिटिव और पावरफुल। तो जो भी आप अपने जीवन में बाहर देखना चाहते हैं, नोट करना है इस बात को, आज सदा के लिए नोट करके जाना, इसको क्लिक कर लेना, इसको लिख लेना कि जैसा आप अपना जीवन बाहर देखना चाहते हैं उसको सबसे पहले अपने मन में क्रिएट करें, उसकी रचना अपने मन में करें। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो बीमारी आपके पास आएगी ही। देयर इज नो वे इट कैन स्टॉप। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो आपको स्वस्थ रहने से कोई भी दूर नहीं रख सकता। यू हैव द पावर। जो लोग कहते हैं मेरी लाइफ में ऐसा होता है, मेरी हस्बैंड से नहीं बनती है, मेरे को सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे को ये नहीं होता है, स्टार्ट बिलीविंग in your thoughts, I am a successful soul. I will create my destiny. सक्सेस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, परमात्मा मेरी बैकबोन है, सक्सेस मेरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। And you do this with conviction, your thoughts will guide you automatically. They will take you to a path, to a journey which is beautiful. ये हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अनुभव किया है। तो स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव एंड पावरफुल अफर्मेशन, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव आउटलुक, परसेप्शन चेंजेस एंड सक्सेस आपकी लाइफ में हमेशा आएगी। देयर इज नो डाउट। सो पेसिमिज्म इज सिनोनिमस विद वीकनेस एंड ऑप्टिमिज्म इज सिनोनिमस विद पावर। वी आर पावरफुल सोल्स, ऑप्टिमिस्टिक सोल्स। मेरे बच्चे ही घर में नहीं करेंगे, पता नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, उनको तो सक्सेस मिलती नहीं है, जा तो रहा है, होगा या नहीं होगा। Creating uncertainty in your minds is automatically putting a question mark on the predestined success. मन के कमजोर संकल्प ही हमारी सक्सेस को हमसे दूर ले जाते हैं। और परमात्मा आकर हमको रोज सम्मान देता है तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। परमात्मा आकर हमको रोज बोलता है तो मास्टर भगवान हो, यानी यू हैव द पावर, क्योंकि ही इज अवर बैकबोन। तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, बॉडी क्यों नहीं हील होगी? वी हैव द पावर टू डू दिस इन आवर लाइफ। इस बारी आपने संडे की अव्यक्त मुरली पढ़ी थी, तन मन धन संबंध संपर्क। How beautifully God explained to us that by creating powerful thoughts in our mind, we can completely change our own destiny. We can completely start creating our own life in our life. क्या हम लोग जब बीमार हैं तो हमारे संकल्प, हमारी मेडिटेशन हमको हेल्प कर सकती है? Is it possible? और इज इट नॉट पॉसिबल? ये क्वेश्चन तो निकलेगा ना।
नेचुरली निकलेगा, अरे आप ब्रह्मा कुमारीज में हैं फिर भी बीमारी आ रही है, अरे ब्रह्मा कुमारीज कभी ये गारंटी करते हैं कि बीमारी नहीं आएगी? दीज आर अवर नेचुरल कर्म एंड कर्म संस्कार, दिस ओल्ड कर्मास दैट आर कमिंग. But how beautifully mind power, how beautifully our own thoughts are helping us to overcome and emerge victorious over those illnesses is the power of our mental thoughts. मैं आपको एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, और ये ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के ऊपर डॉक्टर जेबी मॉसले ने यूएस में स्टडी की, और ये बहुत बड़ी जर्नल में स्टडी पब्लिश्ड है. अब ध्यान से आप मेरी तरफ देखिए, स्लाइड्स की तरफ ध्यान न देकर मेरे को देखिए. इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑस्टियो आर्थराइटिस, समझते हैं जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको नी पेन रहता है, उन ग्रुप्स को इन्होंने लिया. एक नी ग्रुप को, एक नी पेन जिनको था, उनको इन्होंने सर्जरी के अंदर लिया, और सर्जरी करके उनके एक्चुअली नी को इन्होंने रिपेयर किया. समझे? एक ग्रुप को इन्होंने एक्चुअली रिपेयर किया. दूसरे ग्रुप को, जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता था, ये ऑपरेशन थिएटर में ले गए. उनके रिलेटिव्स को ये बताया कि इनकी सर्जरी हो रही है. पेशेंट्स को भी यही बताया गया कि इनकी सर्जरी हो रही है. उनको बेहोश भी किया गया, उनके नी जॉइंट को खोला भी गया, लेकिन खोल के बिना टच किए इन्होंने उनके नी जॉइंट को बंद कर दिया. लेकिन पेशेंट्स को यही मालूम था कि मेरी सर्जरी हुई है. समझे? एक ग्रुप की एक्चुअली सर्जरी हो गई, और एक ग्रुप को केवल ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरी सर्जरी हुई है, लेकिन केवल डॉक्टर और नर्सेस को मालूम था कि उनकी एक्चुअल सर्जरी नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने दोनों ग्रुप्स के पेन को एस्टिमेट करना आरंभ किया. 6 महीने बाद जब इन्होंने एनालिसिस किया, तो जिन पेशेंट्स की एक्चुअल सर्जरी हुई थी और जिन पेशेंट्स की सर्जरी नहीं हुई थी, लेकिन वो केवल मान रहे थे कि उनकी सर्जरी हुई थी, दोनों ग्रुप्स में सेम लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ पेन पाया. यानी जिनकी सर्जरी नहीं हुई थी, केवल नी ओपन करके उनका बंद कर दिया गया था, उनके अंदर भी पेन इंप्रूव होने लगा. कैसे हो सकता है ये? बिकॉज ऑफ देयर प्लेसिबो इफेक्ट, बिकॉज दे thought, they believed that now they are operated, so they are fine and they are perfect. इनको कोई भी बीमारी अब मेरे नी में नहीं है. This is called a powerful placebo effect. Optimism, empathy, suggestibility, telling your body that I am fine. क्या शो करता है? That केवल अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी माइंड पावर के द्वारा हम अपने शरीर को हील कर सकते हैं. अपने शरीर को अपने अनुसार हम लोग चला सकते हैं. द पावर इज विद अस. सीरियस इलनेसेस, डिफिकल्ट इलनेसेस, जो कई बारी टर्मिनल इलनेसेस हैं, उसमें भी क्या हम लोग अपने आप को हील कर सकते हैं? देखिए, ये जेंटलमैन बहुत फेमस जेंटलमैन है. ही इज मिस्टर स्टोमैटस मोराटिस. ये यूएस वॉर वेटरन थे और ग्रीस के रहने वाले थे. जब ये रिटायर हुए तो इनको टर्मिनल 4th स्टेज लंग कैंसर से डायग्नोज किया, और डायग्नोज करने के बाद इनको बोला गया कि आपके पास बायोप्सी प्रूवन कैंसर था, कि आपके पास 4 हफ्ते है केवल लाइफ के अंदर, 4 हफ्ते से 4 महीने से ऊपर आप नहीं जी पाएंगे. तो इन्होंने कहा भाई अब मुझे मरना ही है, तो क्यों नहीं मैं अपने ओरिजिनल टाउन जाऊं ग्रीस के अंदर, इकारिया में, जहां पर मैं अपने प्राणों को भी छोड़ूंगा, अपने परिवार वालों से भी मिल लूंगा. क्योंकि यूएस में उस समय बरियल जो था $200 कॉस्ट करता था, और ग्रीस में केवल $10 कॉस्ट करता. तो ये अपने टाउन चले गए. वहां गए, अपने ओल्ड होम में गए जहां कुछ नहीं, गांव खेत थे. अपने परिवार वालों से मिले, अपने दोस्तों से मिलके खुश हुए, अपनी लाइफ में खेती बाड़ी आरंभ की. जो बचे कुचे टाइम बचा हुआ था कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बो कर जाऊं, अच्छा रहेगा. तो 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकला, 4 महीना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया. तो इनको ध्यान में आता था कि भाई मुझे तो 6 महीने बाद मरना था, लेकिन मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो और बेटर होता जा रहा हूं. जब इनको ऑलमोस्ट 10 साल निकल गए, तो 10 साल बाद इन्होंने कहा अब तो बहुत हो गया, मैं अमेरिका जाऊं. अपने डॉक्टर्स के पास गए पूछने के लिए कि भाई मुझे बायोप्सी प्रूवन टर्मिनल लंग कैंसर था, लेकिन मैं जीवित कैसे हूं? जिन डॉक्टर्स ने इनको डायग्नोज किया था कि आपको टर्मिनल लंग कैंसर है, वो सब ऑलरेडी डेड थे उस टाइम, वो सब खत्म हो चुके थे. और ये वापस अपने टाउन में आए,
टाउन में आकर 102 साल की उम्र के अंदर इन्होंने अपने शरीर को त्यागा। दिस मैन इज कॉल्ड द मैन हु फॉरगॉट टू डाई। और जहां ये रहते थे उस जगह को कहते हैं द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। दिस इज कॉल्ड द आइलैंड वेयर द इकारिया। व्हाट वाज कॉमन? These people meditate. They are happy in their life. They reconnect with their faith. They live on a natural diet. आप देख रहे हैं ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं उस आइलैंड की, जहां आप देख रहे हैं कि दाढ़ियों को देखकर आप कह सकते हैं कि इनकी उम्र किस प्रकार की हो। सब कुछ है इनके पास, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ को टेक्नोलॉजी के से ज्यादा अपने ओरिजिनल इनेट सेल्फ पर बैलेंस किया है। The power to heal is not just with the science. Science is just working mechanistically. But जब हमारा faith आता है, when we start meditating, our belief system starts healing us miraculously. हमारा मान्यताएं जब परिवर्तित होती है, yes, I will change, तो हमारा complete life actually change हो जाता है। These zones are called blue zones. And there are 5 such blue zones in world where average longevity is more than 90 years. आपके लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में एक ऐसी जगह, एक निकोया पेनिनसुला कोस्टा रिका, सार्डिनिया इटली, इकारिया ग्रीस एंड ओकिनावा जापान के अंदर ये सारे आइलैंड्स हैं। So this is the power of healing yourself. In 2003 when I was doing cardiology, 2002 में मैंने ज्वाइन किया था, तो I started losing weight significantly. और धीरे धीरे वेट जब मैं लूज कर रहा था, एक दिन मुझे बहुत सिवियर सीजर्स हुए, और उस सीजर्स के बाद जब मेरा ब्रेन का स्कैन किया गया, ये मेरे अपने ब्रेन का स्कैन है, तो देयर वाज अ लार्ज मास इन द ब्रेन। एंड करीब 1.5 साल मैं रोज मुरली पढ़ता था, अपना रेगुलर मेडिटेशन करता था, एवरीथिंग आई वाज डूइंग, लेकिन 19 ड्रग्स व्हिच वर अवेलेबल एट दैट टाइम, उनमें से 18 ड्रग्स के लिए मेरी बॉडी रेजिस्टेंट थी उस डिजीज के। केवल एक ड्रग से सेंसिटिव थी। 13 टैबलेट्स और ड्रग्स में रेज लेता था, रोज इंजेक्शंस मुझे लगते थे, और दर्द होता था लेकिन कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होती। दिस ऑर्डर वेंट ऑन फॉर 1.5 to 2 years in my life. And then I remember in 2005 I went to meet Baba also. मधुबन में जब मैं गया तो बाबा ने स्टेज पर बुलाया, और स्टेज पर गया तो मुझे बहुत प्यार से, जैसे बच्चा होता है अपने पिता के आगे जाएगा, तो आई जस्ट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे आई नेचुरली, तो वो पिक्चर मेरे पास अभी भी है। तो अव्यक्त बाबा ने बहुत प्यार से सर पर हाथ रखा और रखकर सेब देकर बोला कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और वो चली जाती हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हमेशा सेफ रहते हैं। एंड दिस अल्टीमेटली एंडेड अप इन अ मेजर ब्रेन सर्जरी ऑन June 20th, 2005। ऑन June 20, 2005 के बाद जब ब्रेन सर्जरी हुई, तो आप देख रहे हैं कि इस एरिया में कोई लेजन नहीं था, लेकिन ये जो लेजन था इसका उन्होंने ऑपरेट कर दिया, और ऑपरेट करने के 6 महीने बाद आप देखेंगे ये पुराना लेजन तो हील था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे ब्रेन में एक और लेजन उस एरिया में नया आ गया, और इसका सर्जरी संभव नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट दिस। देन आई वॉज वंडरिंग व्हाट शुड आई डू नाउ। मैं सब कुछ करता हूँ। आई स्टार्टेड डूइंग फोकस्ड मेडिटेशन ऑन माई ओन। रोज सवेरे में मॉर्निंग में उठकर अमृत वेले मॉर्निंग पावरफुल मेडिटेशन, पानी को सामने रखना बाबा के, उसके अंदर शहद रखकर उसको मैं चार्ज करता विद पावरफुल। केवल रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाबा की याद में, परमात्मा की याद में रहकर उसको पावरफुल अकॉर्डिंग, जो टैबलेट्स थी वो तो मैं ले ही रहा था, सारी दवाइयां ले ही रहा था। अब देखिए जनवरी 2006 और फिर अप्रैल 2007 में जब मैंने अपने स्कैन्स को रिपीट कराया, तो आप देखिए वो लेजन कहां पर है, आपको दिखता है कहीं पर या नहीं दिखता? इट ऑल डिसअपियर्ड विद मैजिक। द मैजिक ऑफ मेडिटेशन, द मैजिक ऑफ हीलिंग। अपने संकल्पों की शक्ति के द्वारा, अपने मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा हम अपने आप को कंप्लीटली हील कर सकते हैं। जहां साइंस कहती है कि दवाइयां कार्य करेंगी, वो जरूरी है, लेकिन साइलेंस की शक्ति, मेडिटेटिव पावर कहती है यू हैव कंप्लीट पावर टू हील your own self. This is the power that we all have to use. Like an orchestra, जब हमारे मन से एक संकल्प पावरफुल जाता है, ये व्यक्ति आप बीच में देख रहे हैं जो खड़ा हुआ है, वो एक सिग्नल देगा,
बॉडी के 50 ट्रिलियन सेल्स, दे ऑल स्टार्ट डांसिंग इन वन ट्यून. They all start working with one aim, to heal your own self. बट अगर इधर से ही सिग्नल खराब जाएगा, इधर से ही सिग्नल वीक जाएगा, तो बॉडी के सेल्स क्या करेंगे? जो सिग्नल जा रहा है वो उस पर काम करेंगे. मैं बीमार हूं तो सारे शरीर डांस करेंगे, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं. लेकिन जब शरीर को आप सिग्नल देंगे, अपने सेल्स को, आई एम हील्ड, आई एम परफेक्ट, हील मी कंप्लीटली, they all start emitting, start increasing your immunity, that I am powerful and I believe. So this is the power and magic of meditation that you can create in your own life. Everything that you want, you can create. So we have the power to heal our body, to control our genes. अपने genes को control करना, अपनी body को heal करना, ये nobody else can do. We can do better than anyone else. Dadi Janki, a practical example in front of you. N number. I had the fortunate luck of going. मुझे बोला था कि आप दादी से मिलने आइए. तो अहमदाबाद में जब दादी एडमिटेड थे, just 10 days before she left, I went there. I was there with her in ICU. I remember those beautiful events. that दादी है, सब कुछ है, लेकिन how beautifully she was healing her own self. सब कुछ होते हुए भी शरीर अपना काम कर रहा है, लेकिन मन उनका अपने आप अपने अनुसार कार्य करता था. Her mind was controlling and governing her own body. This is the power that we have in our own life today. This we can create in our own life today. That is amazing that we want to understand. So what we think, we become. जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे. Whatever you are thinking, you will start creating that in your own life. हमारे रिलेशंस, परिवार में संबंध, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते हैं, वाइफ हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे फैमिली में टर्मोइल रहता है, कभी डाइवोर्स कोई मांगता है, कभी टर्बुलेंस हमारी लाइफ में आती है. कैसे चेंज करें, किसको चेंज करेंगे? कुछ स्ट्रेस बहुत रहता है. परमात्मा कहता है किसी को भी चेंज नहीं करना है. चेंज करना है किसको? केवल स्वयं को चेंज करना है. What I'm going to say, you must note it down now. These are words that you will always miss in your life. Remember, we human beings are taught to communicate by language. Unfortunately, language is designed to hide feelings. हम अपने शब्दों से किसी भी व्यक्ति से कितना भी मीठा बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है, तो आप कभी भी उस व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. ये रूल है. मैं अगर आपके घर पर भोजन पर आया और आप मुझे कहें कि ओ डॉक्टर मोहित, आप इतने टाइम बाद पहली बार आए हैं, आज तो आपको आना है, आपको डिनर करके जाना है, वंडरफुल, बैठेंगे, वी विल टॉक, और अंदर से आप कहें कि ये भी कोई टाइम था आने का, लो इस समय पर आ गए, अब इनके साथ बैठना पड़ेगा, मेरा टाइम खराब जाएगा. You see, you can be very sweet to me on words, but what are the vibrations with which we are working? It is more important that human beings should work with vibration. Vibrations never go wrong. In a jungle, you see deer and lion, they are all working with energies. They feel the energy of each other and they run away. And when they feel the energy of each other which is positive, they connect with each other. वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं. इसी प्रकार हम लोग केवल फिजिकल एंटिटी नहीं हैं, हम लोग वाइब्रेशंस कंटिन्यूअसली एमिट करते रहते हैं. आपके पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाएंगे. उस व्यक्ति को चेंज करने के लिए हमें अपने वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाना पड़ेगा, एनर्जी वेव्स को पावरफुल बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे संकल्पों को भी पावरफुल बनाना पड़ेगा. जिस व्यक्ति से हम सबसे कम बात करते हैं, हम मन में उस व्यक्ति से सबसे ज्यादा बात करते हैं. आप चेक करना. आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद दिस पर्सन.
बट एक्चुअली फ्रॉम आवर ओन माइंड उस व्यक्ति से हम लोग सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज माई थॉट्स आर कंटिन्यूअसली एंड नेगेटिवली एरोनसली कनेक्टेड विद दैट पर्सन. अगर आज हमको परिवार में, जैसे हमने अपने परिवार का आपका शेयर किया, व्हाई? बिकॉज इट्स अवर एनर्जी, अवर वाइब्रेशंस दैट आर गोइंग टू क्रिएट मैजिक. कोई भी और चीज मैजिक नहीं क्रिएट करेगी. अगर हम लोग अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करेंगे लगातार, कंटिन्यूअसली, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द पर्सन इज बिहेविंग, वी कीप ऑन क्रिएटिव पॉजिटिव थॉट्स. टेलीपैथी की कम्युनिकेशन जब हम क्रिएट करते हैं, उस व्यक्ति के मन को बार बार पॉजिटिव सिग्नल जाता है. द रिलेशन स्टार्ट. केवल 8 बातों को चेक करना है. इन 8 बातों में से मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूं मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करता हूं, मैं रोज स्पिरिचुअल वर्जन्स पढ़ता हूं, दैट इज फाइन. बट हैव आई लेफ्ट दीज 8 थिंग्स इन माय लाइफ? एंगर, इरिटेशन. इरिटेशन एंगर का बच्चा है. हम मुख से एंगर नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन इरिटेट मन से होते रहेंगे. दूसरों के प्रति हेट्रेड एंड जेलसी, कंपटीशन की फीलिंग, द फीलिंग ऑफ क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, कंप्लेनिंग कॉन्स्टेंटली एंड एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अदर्स. अगर इन 8 बातों में से कोई भी बात अगर मेरे जीवन में है, आई विल नेवर बी एबल टू हील माई रिलेशन. फिर पता है क्या होगा? जैसे ये बर्डन है ना, आप देख रहे हैं ये बर्डन, इस बर्डन को हम लोग कैरी करते रहें, इस नेगेटिव बर्डन को हम लोग कैरी करते रहें. और करें, कोई बात नहीं. अगर किसी व्यक्ति ने बुरा किया है, कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं? कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं? सिस्टर, कैन एनीबॉडी, वन पर्सन अनम्यूट एंड आंसर वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड? ओके, yes. Anybody, any student or any particular person would like to participate? Anyone? भाई जी, आप अनम्यूट करेंगे? या आज मैं आप सबको एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज देता हूं. अगर किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ बुरा किया है, तो उसने बुरा किया है तो उससे बदला तो हमको लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए. और अगर उसने 10 साल पहले बुरा किया है तो हमें इंटरेस्ट से उससे बदला लेना चाहिए. लेकिन आज हम सब लोग एक एक्सरसाइज करेंगे 5 दिन के लिए. सभी लोग करेंगे 5 दिन के लिए एक एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगा. एवरीबडी विल डू, यस और नो? यस और नो? हाथ. यस. एवरीबडी विल डू. वंडरफुल. बहुत सिंपल है. रिकॉर्ड कर रही है दीदी मीटिंग, ध्यान रखना, फिर बाद में मुकर नहीं जाना. रिकॉर्ड कर रही है दीदी. बहुत सिंपल है. वैसे ज्यादा मैं आपको कोई टफ एक्सरसाइज नहीं बताने वाला, बहुत सिंपल एक्सरसाइज. ध्यान से सुनना. अगले 5 दिनों के लिए हमारा सारा परिवार, यूएस का परिवार, कनाडा का परिवार जो हमारे साथ जुड़ा है, 5 दिनों के लिए हम जब रोज घर की कैन एवरीबडी बी म्यूटेड? यस. तो अगले 5 दिनों के लिए हम बहुत सिंपल एक्सरसाइज करेंगे. हम लोग 5 दिनों के लिए जब घर की सफाई करेंगे, घर का कूड़ा निकलेगा, घर की सारी नेगेटिव चीजें निकलेंगी, उस सारे कचरे को, कूड़े को, वेस्ट को हम लोग एक बैग में संभाल कर, ट्रांसपेरेंट बैग में अपने ड्राइंग रूम में सजाकर हम लोग रखेंगे फॉर 5 डेज, इकट्ठा करके. एवरीबडी रेडी? एवरीबडी रेडी? अब तो कोई नहीं बोल रहा. No. Yes. Can you please repeat one more time? Yes. For 5 days आप सारा वेस्ट, घर का सारा गार्बेज अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखेंगे. आर यू रेडी फॉर दिस और नॉट? नो. यस और नो? क्यों? अच्छा चलो, आप लोगों के लिए डिस्काउंट है फॉर 2 days. फॉर 2 days? No. क्यों? Sorry, no. सॉरी, नो. ये तो गलत बात है. ये तो बहुत गलत बात है. आप लोगों की बातों का कूड़ा अपने मन पर 20-20 साल रखना चाहते हो, लेकिन और 20-20 साल अपने मन पर. ओके, एक मिनट. हाँ भाई साहब, आप अनम्यूट करना. तो हम लोगों की बातों को अपने मन में 20-20 साल संभाल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मन की सफाई रोज नहीं करना चाहते. घर की सफाई रोज, लेकिन मन की सफाई हम लोग रोज नहीं करना चाहते हैं. ऐसा हमारा मन चल रहा है. वी आर कैरिंग दैट लगेज, दैट गार्बेज
with our own self, तो कैसे होगा? परमात्मा क्या कहते हैं? अपनी लाइफ में एंगर को लव से, हेट्रेड एंड जेलेसी को कंपैशन से, एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्टेंस से, अंडरस्टैंडिंग से, एप्रिशिएबिलिटी से, इन चीजों को ले आई. दैट्स ऑल. These are our original folders. These are our innate selves. We have to inculcate all these folders in our life. बस नेचुरल है ना. जो किचन में कॉमन मसाले हैं, नमक, अचार, मिर्च और रोटी और जो आटा है, उसको कहाँ रखते हैं? आगे रखते हैं. सिमिलरली जो हमारा मन की किचन है, उसमें नेचुरल जो हमारे गुण हैं वो है लव, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन फॉर ईच अदर. आगे रखो ना. स्टार्ट यूजिंग देम, स्टार्ट लविंग देम. कोई नहीं भी करे, मुझे करना है, मुझे देना है, मुझे प्यार से अंडरस्टैंड करना है. डू इट फॉर वन डे, द वाइब्रेशंस विल चेंज, द एनवायरनमेंट विल चेंज, मैजिक विल हैपन. आप अपने घर को सत्युग में कन्वर्ट कर पाएंगे. आपके रिलेशन सुंदर और पावरफुल हो जाएंगे. क्या मुझे ही करना है? हाँ, परमात्मा कहता है आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माई ओन लाइफ. इफ आई हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस, आई हैव टू टेक अ इनिशिएटिव इन माई ओन. दैट्स द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. In 2021, these are times to move back, not from high tech, but from high tech, we have to create high touch in our life. A touch of love, a touch of understanding, a touch ऐसा जो ऐसा compassionate hand किसी के ऊपर जाए, जो उस आत्मा को, उस व्यक्ति को सुकून और शांति की अनुभूति हो, उसको आनंद की अनुभूति. This is the joy, this is the power that we have to create. क्या हमारा संकल्पों की शक्ति हमारे भोजन, हमारे पानी पर भी असर डालती है? Many of us say that why in ब्रह्मा कुमारीज आप मेडिटेट करके भोजन बनाते हैं, आप भोजन खाने से पहले परमात्मा को खिलाते हैं, आप उसको क्यों ऐसे स्वीकार करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड उसके पीछे साइंस क्या है. डॉक्टर मासारू इमोटो, ही इज अ जापानीज साइंटिस्ट. बहुत सुंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया और इसको ध्यान से समझिए. इन्होंने इमोशनल एनर्जीज और वाइब्रेशंस को यूज किया कि क्या पानी मेरे फिजिकल स्ट्रक्चर, पानी मेरे इमोशंस फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को चेंज कर सकता है. तो उन्होंने सेम सोर्सेस से पानी को लिया और एक पानी को बार बार फीलिंग दी डर की, थॉट से दिया कि मुझे डर लगता है, डर डर डर, और दूसरे पानी को इन्होंने थैंक्स की फीलिंग दी कि आई एम रियली थैंकफुल क्योंकि आप मेरी प्यास बुझाते. आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इन्होंने ऑब्जर्व किया the structure of water changed dramatically into a beautiful diamond when you are giving positive feeling. और जब हम नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर बहुत अगली हो. अमेजिंग. ना केवल ये, इन्होंने जब भी पॉजिटिव इमोशंस को लिया, थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, इटर्नल, एंजल, आई लव यू, तो पानी का स्ट्रक्चर अलग अलग डायमंड्स का रूप लेता चला. लेकिन जब इन्होंने नेगेटिव इमोशंस को लिया तो नेगेटिव इमोशंस ने पानी को कंप्लीटली नेगेटिव स्ट्रक्चर दिया. और ना केवल ये, इन्होंने इससे एक्स्ट्रापोलेट करके क्लियरली बोला, बाय होल्डिंग इंटेंशन ऑफ पीस टुवर्ड वाटर. जब हम शांति के संकल्प पानी की तरफ रखते हैं, जब हम बोलते सोचते संकल्प जो है हमारे पानी की तरफ हीलिंग संकल्प है, देन वाटर कैन एंड वाटर विल ब्रिंग पीस टू अवर बॉडीज एंड टू अवर. तभी हम लोग जब पानी को भी ग्रहण करते हैं तो पानी को पावरफुल वाइब्रेशंस देते हैं. तभी कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसी पानी वैसी वाणी. क्यों? क्योंकि जब हम उस पानी को पावरफुल वाइब्रेशंस देंगे तो वो पानी भी हमारे शरीर को हील करता है, उसको शक्ति देता है. सेम एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने भोजन पर किए, इन चावल के दानों पर किए. जब चावल के एक दाने, दीज आर ऑल साइन के संकल्पों के द्वारा सुंदर रूप से हम अपने, देखिए कितना प्यार का संकल्प दिया कि ये भोजन मेरे तन और मन दोनों को शक्तिशाली बनाएगा. वही भोजन मेरे लिए रिमेंबर.
whenever we are having anything in our body, our meals, परमात्मा की याद में भोजन बनाना है, शुद्ध भोजन बनाना है। और जो भोजन हम भगवान को स्वीकार नहीं करा सकते हैं, उस भोजन को स्वयं ग्रहण नहीं करना है। भोजन को परमात्मा की याद में बनाना है, उसको स्वीकार कराकर उसको ग्रहण करना है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द पावर ऑफ हीलिंग आवर फूड एंड एनवायरमेंट, प्रकृति। आज देखें कि एक एक सेकंड में प्रकृति की आपदाएं आ रही हैं, कैलिफोर्नियन फायर्स आ रही हैं, सुनामीज आ रहे हैं, फ्लड्स आ जाते हैं। नेचर हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती है। व्हाई? बिकॉज हमने जब नेचर को अब्यूज किया है तो नेचर भी हमारी तरफ रिटेलिएट करती है। और परमात्मा आकर हमको एक टाइटल देता है कि तुम मास्टर प्रकृति पति हो। You are the master controller of the nature in your life। जब हम नेचर को लव की फीलिंग देते हैं, अगेन दी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, तो आप देखेंगे कि फ्लावर्स कितने हेल्दी रहते हैं। लेकिन जब हम नेचर को हेट और इग्नोर की फीलिंग देते हैं तो वही नेचर हमसे डिस्टेंस हो जाती है। तो हीलिंग की एनर्जी जब हम मेडिटेट करते हैं तो वी सिट इन मेडिटेशन एंड स्टार्ट हीलिंग नॉट ओनली विद आवर ओन सेल्फ, लेकिन हमारे थॉट्स कंप्लीट नेचर को भी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, हर तत्व को भी बहुत शांति के वाइब्रेशंस देते हैं, दैट यू आर गेटिंग हील। एंड द लास्ट थिंग, दैट क्या हम अपने मन की शक्ति के द्वारा हम एनवायरमेंट चेंज कर सकते हैं सिटी का? I'll show you a beautiful experiment which was carried out in the city of Washington. There was when violence, rapes, homicides and assaults were significantly increasing. Washington के अंदर तो 6 हफ्ते के लिए इन अ सिटी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल 4000 लोगों सिटी के अंदर 4000 लोगों को केवल 6 हफ्ते के लिए फोकस्ड आधे घंटे की मेडिटेशन के लिए बिठा। क्राइम इन विदिन 6 weeks 25% that in a sea of meditation के लिए बिठा देते हैं, 50% decrease in crimes and rapes would be observed। तो हमारे संकल्प कितना मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। परमात्मा हमको रोज बोलता है कि अपने संकल्पों के द्वारा तुम्हें कंप्लीट यूनिवर्स को ट्रांसफॉर्म करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस किसके द्वारा आरंभ होगा? हमारे मन की शक्ति के द्वारा आरंभ होगा। एंड दैट इज व्हाई टाइम्स मैगजीन ने बहुत सुंदर एनोटेट दिया that we have the power and the potential to unlock the gene, the God gene in our own. We are given every day, we have 1440 daily opportunities to make a positive impact, not only on our lives, but on our lives of all the people. To create a conscious future, to meditate, to take a spiritual vacation, रोज बैठकर शांति में आराम से परमात्मा की याद में हीलिंग एनर्जी अपने एक एक संकल्प द्वारा अपने शरीर को देना। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन में आप देखेंगे नॉर्मल ब्रेन वेव पैटर्न हमारा बिल्कुल अनबैलेंस्ड होता है। आप देखेंगे दिस इज अ नॉर्मल ब्रेन वेव पैटर्न, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन आर इन कंप्लीट डिससिंक्रोनी विद ईच अदर, एंड दैट इज व्हाई एंजाइटी, डिप्रेशन और पुअर मेंटल हेल्थ होती है। लेकिन ओनली 15 minutes ऑफ मेडिटेशन मैजिक स्टार्ट्स। द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बोथ द राइट एंड द लेफ्ट ब्रेन दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, एंड 25 minutes देयर इज अ कंप्लीट, आप देखेंगे दोनों के अंदर समन्वयता बहुत आसानी से। और ये समन्वयता जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे जीवन में हमको बैलेंस देती है। लेफ्ट ब्रेन जो हमारा सोचने की शक्ति रखता है, जो कि एनालिटिकल है, जो कि साइंटिफिक है,
लेकिन जो परमात्मा हमको कहता है वो है राइट ब्रेन को यूज करना, जो कि पैशनेट है, लविंग है, अंडरस्टैंडिंग है, फ्री है और क्रिएटिव है। मेडिटेशन और योगी आत्माएं राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को परफेक्ट हार्मनी में वर्क करती हैं, और तभी वो अपनी डेस्टिनी को, अपने फ्यूचर को बहुत सुंदर रूप से क्रिएट कर सकती है। तो आज हम अपने जीवन में यही अनुभव किया। 35 इयर्स में द सिचुएशंस वर डिफिकल्ट, बट द पावर ऑफ मेडिटेशन, जो योग की शक्ति है, उस योग का स्वरूप, उस योग की शक्ति को जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो वो शक्ति मैजिक का कार्य करती है। हम आज चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, लेकिन परमात्मा सदा हमारे लिए है, उसकी शक्ति भी सदा हमारे लिए है। लेकिन क्या हमारे पास उसके लिए समय है? क्या हम उसको अपने जीवन में आकर, अपने जीवन में सदा खुशी, प्यार, शांति, शक्ति, पवित्रता, और जब ये 6 चीजें हमारे पास आती हैं तो 7वां जो आनंद की स्थिति है, क्या हम उसका अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? द चॉइस इज टोटली आवर्स। पुराने जमाने में ये समय था कि आपको जानना चाहिए, लेकिन आज हम इस मोड़ पर आकर पहुंचे हैं कि हम ये भी जानते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम योग को अपने जीवन में यूज करते हैं, then how scientifically we can create miracles in our life. Today it is not just important to know, but it is important to know how magic is happening in our own life. अगर आप चाहें तो आपका अपना संपूर्ण जीवन एक नया परिवर्तन ले सकता है, लेकिन केवल उस संबंध की अनुभूति, उस शक्ति की अनुभूति, उस मेडिटेटिव पावर को अपने जीवन में अनुभव करना है। तो चलिए हम लोग 2 मिनट केवल परमात्मा की याद में बैठेंगे और हम एक बहुत बहुत सुंदर गीत आपके लिए चलाएंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि समय भी हुआ है, और उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर चीज आप पूछना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर दैट। और बहुत सुंदर ये गीत है जिसको आप सुनते हुए परमात्मिक प्यार का भी अपने जीवन में अनुभव करेंगे। यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग गॉड्स लव इन योर ओन लाइफ एट राइट हियर एट दिस पर्टिकुलर। तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे
पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी